Hey everyone, on page number 53 of your textbook, there is a section called as Use Your Brain Power and there are two questions inside it. So now we are going to solve both the questions one by one. So I am taking the second question and solving it first. It says, how pH of pure water vary with the temperature? So that means if we cool the water or if we heat the water, will pH of the water change? ये उनका question है. So now let us see how it is going to change the pH of the water. So now for those who have not seen the previous videos, I would suggest you all to watch those videos, the concept of pH scale, and then come back to this video. So now we know that water is undergoing autoionization like this. Now we also write something called as Kw, ionic product of water. Which is Kw is equal to concentration of H plus multiplied by concentration of OH minus. Now value of Kw is 1.00 into 10 raised to minus 14 at 25 degrees Celsius. This is very, very important. This value, or you can simply say 10 raised to minus 14 because 1 multiplied by anything is that number itself. So instead of saying 1.00 into 10 raised to minus 14, you can simply remember this as 10 raised to minus 14. So this value of Kw, which is 10 raised to minus 14, is at 25 degree Celsius. Now ये वैल्यू डिपेंड किसके ऊपर करेगा? ये आयोनाइजेशन के एक्सटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा. मतलब ये जो H2O है, दिस इज अनआयोनाइज्ड H2O एंड दीज आर द आयंस. ओके, सो ये कितना एक्सटेंट तक आयोनाइज होता है, कितना ज्यादा स्प्लिट होता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा Kw का वैल्यू. सो नाउ वी हैव आल्सो सेड दैट फॉर अ सब्सटेंस टू बी न्यूट्रल, for any particular substance to be neutral, value of H plus should be equal to value of OH minus, but this value H plus and OH minus, if we are considering 25 degree Celsius, ये कितना होगा? 10 raised to minus 7 होगा, because दोनों का multiplication कितना है? 10 raised to minus 14. So वो इंडिविजुअल वैल्यू कितना होना चाहिए? 10 raised to minus 7. सो दैट 10 raised to minus 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to minus 7 कितना बन जाएगा? 10 raised to minus 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस. सो नाउ इफ वी कैलकुलेट pH of water, if we calculate pH of water, which is going to be pH is equal to minus log to the base 10 of H plus ion concentration. तो वो कितना होगा? pH will be equal to minus log to the base 10 of 10 raised to minus 7. So वो कितना हो जाएगा? 7. pH will be equal to 7 at 25 degree Celsius. अभी हम लोग ने देखा था pH scale. In the pH scale, any pH before 7 is acidic, any pH after 7 like greater than 7 is going to be basic, and if the pH is 7 then we say that the substance is neutral. But ये सब हम कब बोल सकते हैं? जब अपना टेम्परेचर
25 डिग्री सेल्सियस हो, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो यहाँ से सब चेंज होना चालू होगा। ओके, इफ वी चेंज द टेम्परेचर, ये आयोनाइजेशन का एक्सटेंट कम ज्यादा होगा। ओके, अगर वो एक्सटेंट कम ज्यादा हो गया तो ये वैल्यू भी चेंज होगा। ये वैल्यू क्यों चेंज होगा? बिकॉज H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन का वैल्यू जो यहाँ पे 10⁻⁷ है, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ पे 10⁻⁷ है एट 25 डिग्री सेल्सियस, वो चेंज हो जाएगा अगर अपना टेम्परेचर चेंज हो गया तो अगर टेम्परेचर चेंज होने पर H प्लस OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है तो pH का वैल्यू भी चेंज होगा, बिकॉज ये वाला वैल्यू यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू आएगा, -log⁻10 ऑफ सम अदर वैल्यू, इट इज नॉट गोइंग टू बी 10⁻⁷। सो इसके वजह से अपना pH भी चेंज होगा। ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज this reaction is like over here the forward reaction is endothermic reaction. This reaction is the forward reaction over here is endothermic. So if we apply our Le-Chatelier principle that we have studied last year, okay, if we apply those and if we increase the temperature of water, if we start boiling the water, the forward reaction will favor according to Le-Chatelier's principle. अगर ये प्रिंसिपल्स याद नहीं है तो भी ठीक है, बस इतना याद रखो, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, देन ये रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा और वी कैन से ये आयोनाइजेशन का एक्सटेंट बढ़ जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर 100 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे at 25 डिग्री सेल्सियस, इमेजिन दैट 100 मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग आयोनाइज्ड, और अगर हम लोग ने टेम्परेचर बढ़ा के उसको से 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, सो नाउ इंस्टेड ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स से 120 मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट आयोनाइजिंग, उससे भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया से 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इंस्टेड ऑफ लाइक 120 अभी 150 मॉलिक्यूल्स का आयोनाइजेशन हो जाएगा। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, extent of ionization of water will increase. Okay, so if the extent of ionization of water increases, क्या उसके साथ और क्या चेंज होगा? मतलब है ज्यादा H प्लस और ज्यादा OH माइनस मिलेगा। पहले से फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स ही मिलते थे, अभी 150 मॉलिक्यूल्स मिलना स्टार्ट होगा जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। सो दैट मीन्स यू गेट द मोर क्वांटिटी ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस। So if we get more quantity of H plus and OH minus ions, ये वाला वैल्यू भी बढ़ जाएगा, concentration of H plus and concentration of OH minus will also increase। उसके साथ साथ और क्या बढ़ेगा? Kw का वैल्यू will also increase because ये individual values बढ़ गए, तो दोनों का multiplication भी और ज्यादा increase हो जाएगा। So value of Kw will also increase if H plus and OH minus increase। तो क्या होगा? यहाँ पे हम अगर उसका लॉग निकालेंगे, ओके, 10⁻⁷, यहाँ पे 10⁻⁷ है, अगर यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू है, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, इससे थोड़ा सा कोई बड़ा वैल्यू मिलेगा, 10⁻⁷ से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू हमें मिलेगा, और अगर हम उसका pH निकालते हैं तो वो जो pH आएगा वो 7 से कम आएगा। वो कम क्यों आएगा? बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने निगेटिव साइन लगा के रखा है। सो देयरफॉर इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, if the concentration of H plus increases, pH will decrease। तो क्या होगा? इफ वी हीट द वाटर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ जाएगा, उसके वजह से pH कम हो जाएगा। इससे एग्जैक्टली उल्टा होगा जब हम लोग वाटर को कूल करेंगे। इफ वी कूल द वाटर, रिएक्शन का एक्सटेंट कम होगा, कम मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होना स्टार्ट होंगे, तो क्या होगा? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। सो इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिक्रीजेस, pH विल इंक्रीज। पर इसका मतलब ऐसा है क्या कि अगर पानी को हम लोग ने बॉईल करके पिया, राइट नाउ वी ऑल आर हैविंग वार्म वाटर,
टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम कोरोना। तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि जब हम लोग वाटर को गर्म करके पी रहे हैं तो पीएच कम हो रहा है, 7 से भी कम हो रहा है, तो हम लोग एसिडिक पानी पी रहे हैं। आर वी ड्रिंकिंग एसिडिक वाटर? नो, वी आर नॉट ड्रिंकिंग एसिडिक वाटर। वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ। ओके, सो यहाँ पे देखो I have made a chart of temperature, various temperatures, then value of Kw and pH of pure water at different temperatures. ये वाले वैल्यूज तुम लोग को इंटरनेट पे बहुत अलग अलग टेम्परेचर्स पे मिल जाएंगे। मैंने बस 3 टेम्परेचर चूज किया है टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। एट 25 डिग्री सेल्सियस जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा, एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या है? Kw का वैल्यू इज 1.00 इंटू 10⁻⁻14। तो अगर हम pH निकालेंगे तो pH बिकम्स 7.00, एग्जैक्ट 7 pH। तो इसका मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस पे जो हम स्केल pH स्केल स्टडी कर रहे हैं वो 0 to 14 होता है। 7 से जो भी कम pH रहेगा सब्सटेंस का वो सब्सटेंस होगा एसिडिक, 7 से ज्यादा pH वाला सब्सटेंस होगा बेसिक। ये सब कब अप्लाइड है? 25 डिग्री सेल्सियस को। अभी अगर हम लोग ने टेम्परेचर बढ़ा दिया 25 से डायरेक्टली 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, वी हैव इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? Extent of ionization will increase. So if extent of ionization increases, value of Kw will also increase. तो अब वो कितना हो गया? 51.3 इंटू 10⁻⁻14 कितना था? 1.0 इंटू 10⁻⁻14 था, उससे डायरेक्टली 51.3। सो बहुत ज्यादा एक्सटेंट बढ़ गया। तो इसका मतलब है हम अगर यहाँ पे pH लेंगे एंड इफ यू कैलकुलेट, नो नीड टू कैलकुलेट एक्चुअली, बस ऐसे बता रही हूँ कि अगर कैलकुलेट करते हो तो आंसर अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा 6.14। तो अगर ऐसे वाले इफ यू टॉक अबाउट pH ऑफ वाटर विच इज से अप्रोक्सीमेटली एट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 से थोड़ा सा कम, 100 के आसपास अगर होता है तो वैसे वाले वाटर का pH रहेगा 6.14। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि बॉइल्ड वाटर एसिडिक है? ऐसा नहीं होगा। एट एनी टेम्परेचर, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे प्योर वाटर का H प्लस एंड OH माइनस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इक्वल ही रहेगा। ओके, बस उसका वैल्यू बदलता जाएगा बट दोनों भी इक्वल रहेगा। से फॉर एग्जांपल अभी ये 100 है, ये भी 100 है, थोड़ी देर के बाद ये 120 होगा तो ये भी 120 होगा। दैट मीन्स इफ H प्लस एंड OH माइनस आर सेम देन वाटर विल ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल। प्योर वाटर कभी भी एसिडिक बेसिक नहीं बनेगा इफ इट इज अ प्योर वाटर, कोई भी टेम्परेचर पे हो, बिकॉज इट्स H प्लस इज गोइंग टू बी सेम एज OH माइनस। सो pH क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि अलग टेम्परेचर पे pH का स्केल ही अलग हो जाएगा। ये जो स्केल हमने पढ़ा अभी तक, pH 7 is neutral, less than 7 acidic, more than 7 basic। ये जो स्केल pH का स्केल हम लोग ने पढ़ा, that scale was only at 25 डिग्री सेल्सियस। बट अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो वो स्केल पूरा का पूरा बदल जाएगा, स्केल ही अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा। सो दैट मीन्स एट 100 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर का pH कितना होगा? 6.14। अगर कोई भी सब्सटेंस का pH 6.14 से कम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर तो ऐसे टाइम पे हम बोल सकते हैं कि वो एसिडिक हो गया। अगर 6.14 से ज्यादा है तो बेसिक बन गया। पर फॉर प्योर वाटर इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इट विल ऑलवेज रिमेन 6.14, स्टिल इट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल, बिकॉज जैसे मैंने बोला स्केल ही पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। नाउ इन लेट अस कूल द वाटर। अभी तक हम लोग ने जो भी 25 डिग्री सेल्सियस का पढ़ा, नाउ वी विल टॉक अबाउट नाउ वी विल कूल द वाटर टू इट्स से फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर मेल्टिंग पॉइंट बोलो 0 डिग्री सेल्सियस। सो ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर अपना वाटर है तो उसका Kw का वैल्यू इससे कम हो गया।
ओके यहाँ पे कितना था 1.00 इंटू 10⁻⁻14, यहाँ पे 0.114 मतलब बहुत कम हो गया. सो दिस वैल्यू हैज डिक्रीज्ड. सो ये वैल्यू बढ़ता, अगर कम होता है तो H प्लस का वैल्यू भी कम हो जाएगा. H प्लस कम हो गया तो pH बढ़ जाएगा. सो दैट मीन्स एट 0 डिग्री या फिर अप्रोक्सीमेटली एट 0 डिग्री सेल्सियस pH ऑफ प्योर वाटर इज गोइंग टू बी 7.47. इसका मतलब ये है क्या कि वाटर बेसिक हो गया? नहीं, वाटर न्यूट्रल ही है, बस pH का स्केल चेंज हो गया. अभी 7.47 0 डिग्री सेल्सियस पे ये वाला pH न्यूट्रल बन गया, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये pH 7 न्यूट्रल बन गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे pH 6.14 न्यूट्रल बन गया. सो बस स्केल चेंज हो रहा है, वाटर तो न्यूट्रल का न्यूट्रल ही रह गया है. ओके, now there is another question on the same page. Suppose that if pH of monobasic and dibasic acid is the same, does this mean that the molar concentration of both the acids are identical? So now here let us first understand the meaning of the terms monobasic and dibasic. So let us understand this with some examples. Imagine you have got HCl, you have aqueous HCl and you also have aqueous H2SO4. Now both the acids that I have written over here are strong electrolytes, they all are strong acids, so they are going to dissociate completely. तो हम लोग irreversible arrow बना देंगे. So now when we have aqueous HCl, it is going to dissociate completely into H plus and Cl minus. And H2SO4 will also dissociate into H plus and SO4 minus 2, but the stoichiometry is going to be 2 times H plus SO4 minus 2. So now you just observe the difference between two. Here we have not written anything, that means the stoichiometric coefficient is 1. So this means, so if we have 1 mole of HCl, from 1 mole of HCl we get 1 mole of H plus, but in case of H2SO4, if we have 1 mole of unionized acid, you will have 2 moles of H plus. We will have 2 moles of H plus because the stoichiometric coefficients are 1, 2 and 1. So right now we are not concerned with Cl minus and SO4 minus 2. So therefore I am not writing anything over here. But let us focus only on concentration of H plus. So ऐसे वाले एसिड्स जो 1 मोल एसिड में से 1 मोल H plus देंगे या फिर 1 मोल H plus में डिसोसिएट होंगे, we call such kind of acids are monobasic acid. मोनो मीन्स 1, सो उसके पास एक ही H प्लस है, एक मॉलिक्यूल में एक ही H प्लस है, इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड. देन दीज आर डाइबेसिक एसिड्स, डाई मीन्स 2, सो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में 2 H प्लस मिल सकते हैं, 2 H प्लस डिसोसिएट हो सकते हैं, सो देयरफॉर we call such type of acids as dibasic acids. I repeat, जो मॉलिक्यूल्स में एक H प्लस मिलेगा, एक मॉलिक्यूल में एक H प्लस मिलेगा, उसको मोनोबेसिक बोलेंगे. जो एक मॉलिक्यूल में से 2 H प्लस मिलेगा, उसको हम डाइबेसिक एसिड बोलेंगे. So now what have they asked in the question? They are saying that suppose that the pH of monobasic acid is the same. मतलब से HCl है एंड H2SO4 है, दोनों अपने पास ऐसे टाइप में है कि दोनों का pH 7 है. अगर HCl का pH 6 है, से फॉर एग्जांपल HCl का pH 6 है, सो H2SO4 का pH भी 6 है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर pH? pH इज इक्वल टू minus log to the base 10 of H plus ions concentration. So
सो कोई भी दो सब्सटेंसेस का pH इक्वल होने के लिए क्या किसको इक्वल होना पड़ेगा? H प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल होना पड़ेगा। इफ दिस H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल तो कैलकुलेशन करने के बाद pH भी तो सेम ही आएगा। सो दैट मीन्स इन लोग ने क्या बोला है, ऐसे हमारे पास दो एसिड्स है, एक मोनोबेसिक है एक डायबेसिक है, बट ऐसे है कि दोनों का भी pH सेम है। सो व्हाट डज दैट मीन? दोनों का भी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। सो to understand this with example, let us assume that H plus ion concentration of HCl is x मोलर। ओके, कोई तो एक नंबर हैगा x मोलर, तो इसका भी वही होना पड़ेगा, इसका भी x मोलर x ही होना पड़ेगा। वाई? बिकॉज दोनों का pH सेम है, therefore उसका H plus ion concentration भी सेम है। So let us assume that the H plus ion concentration of both HCl as well as H2SO4 is x। तो इसको x होने के लिए if you want if you want x number of moles, okay, let us assume that you want x number of moles। so x number of H plus होने के लिए कितना HCl होना पड़ेगा? x मोल ही होना पड़ेगा, because from 1 mole of HCl you get 1 mole of H plus। so if you want x mole of H plus you must have x mole of HCl with it। अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, in case of H2SO4 if you want x mole of H plus तो H2SO4 हमें कितना होना चाहिए? इससे आधा होना चाहिए, बिकॉज 1 मोल ऑफ H2SO4 से 2 मोल्स ऑफ H प्लस मिल रहा है, मतलब डबल द नंबर ऑफ मोल्स, जितना ओरिजिनल एसिड का नंबर ऑफ मोल्स है उसके डबल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस मिल रहा है। तो अगर ये x है, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज x, तो H2SO4 का कितना हमारे पास मोल्स होना चाहिए? x/2 मोल होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक मोल में से 2 H प्लस मिल रहा है। सो अगर x/2 मोल्स है उसमें से x मोल H प्लस मिलेगा। सो ऐसे हमें अभी ये देखना है कि अभी दोनों का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, x हो गया, सो देयरफॉर दोनों का pH भी सेम हो गया। अभी क्वेश्चन क्या है, Does this mean that molar concentration of both the acids are identical? अभी molar concentration of acid अगर हम लोग ने देखा, यहाँ पे molar concentration of acid कितना आया? x मोल आया, x मोलर बोलो, x मोलर आया। यहाँ पे कितना आया? x/2 मोलर आया, x/2 मोलर आया। So that means if we have one acid which is monobasic, second acid that is dibasic और दोनों का pH सेम है, अगर दोनों का pH सेम है तो उसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बट एसिड का मोलर कॉन्सेंट्रेशन अलग है। तो वो कैसे रहेगा? इफ वी हैव टू सब्सटेंसेस, इफ वी हैव वन मोनोबेसिक एंड वन डायबेसिक एसिड इन सच अ वे दैट pH of both the acids is same, but the molar concentration of dibasic acid is going to be half that of monobasic acid. We can write it this way. I'm writing it as D. Okay, a dibasic acid, concentration of dibasic acid is going to be half the concentration of monobasic acid. Thank you so much for watching.